So once again, what do you mean by over voltage? Over voltage का मतलब क्या है वो देखो. See, when we do the electrolysis, when we do the electrolysis, so this is a vessel which I'm keeping, and in that 2 electrodes are kept. This way, which are dipped in a solution of iron, right? Now these two are connected to a battery. So this is your anode and this is your cathode. The electrons will flow from, कैसे जाते हैं electrons? Electrons will flow from negative to positive. So the flow of electron is like this one. When the electron enters over here, see here up to here, there is one wire, suppose copper wire hai. And then this electrode is not a copper, it is a platinum electrode. Okay, so there is a change in the metal. So at this interface, the conductivity of platinum and copper are different. Correct? Now once it enters here, some ions are deposited, which get neutralized. Means ions are accepting electrons. Ions are accepting electrons. Correct? So electrons are changing its phase here at this point of a time, at this place rather, and see here also. Correct? Similarly, ions from this electrode enters into the solution, leaving behind electron. So electrons now flow through this electrode and then from here to here. Is that clear? So if you observe carefully, electrons are flowing through the external circuit, and here the circuit is closed through the flow of ions. So ये ideal case, ideally ऐसा है कि the speed of electrons must be equal to the speed of ions, but it is not like that. If it is same, then the potential required for the discharging of electrode for the electrolysis of electrolyte, okay, that is equal to the theoretical value, that is standard electrode potential. ये हम लोग पढ़ेंगे अभी, जो टेबल में दिया गया होता है. Okay, it has already calculated, but it was observed that the speed of electron and the speed of these ions is not same. Speed of the electron through the copper wire is not same when it is passing through the interface to the electrode. Because of this, we require more potential for the electrolysis. We require more potential for the electrolysis. Is that clear? Okay, that potential, the excess potential or the extra potential which required for the electrolysis of electrolyte is called as over voltage. It is called as what? Over voltage. Understood? Over voltage का मतलब समझ में आया? Yes. Over voltage depends on nature of electrode. So which electrode you are taking, copper or platinum or silver, pH of the solution and temperature. Okay, let's just say the over voltage of oxygen is greater than over voltage of chlorine. Okay, so to discharge oxygen, more potential is required than chlorine. Okay, so this is the over voltage concept. Please write down this part. Right, I'll tell you what you're supposed to write. Write down this definition.
and then write down this fourth point. Okay. So, Okay. so, So done, na? So let us move ahead now. Now we are moving ahead for the concept called as galvanic cell or voltaic cell. Okay. Hold on. Huh? So can you see this page now? Yes. Yes, sir. So we are going to discuss now electrochemical cells. Electrochemical cells, which are also called as voltaic cell or galvanic cell. So we discuss what electrolytic cell. In an electrolytic cell, electrical energy is converted into chemical energy due to non-spontaneous redox reaction. In an electrochemical cell, chemical energy or a device in which chemical energy is converted into electrical energy due to spontaneous redox reaction. Spontaneous
redox reaction. Spontaneous doesn't mean fast. अभी थर्मोडायनेमिक्स हम लोगों ने पढ़ा है, तो उससे हम लोग बोल सकते हैं spontaneous मतलब feasible reaction is called as electrochemical cells. Is called as electrochemical cell or voltaic cell और galvanic cell. ठीक है, समझ में आई है? ओके, नाउ यहाँ पे जो एनोड होता है, सो यहाँ पे मैं इमीडिएटली बता देता हूँ तुम लोगों को, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेल्स. फ्रॉम रेडॉक्स रिएक्शन. सो एक रेडॉक्स रिएक्शन दिया है, उससे हम लोग सेल कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं. तो सेल रिप्रेजेंट करने के लिए रिप्रेजेंटेशन, दिस इज IUPAC कन्वेंशन. This is according to the IUPAC convention. So if I say IUPAC convention, इसका मतलब यहाँ पे होता क्या है? देखो, फर्स्ट पॉइंट ये है, there is an electrode. वहाँ पे एक इलेक्ट्रोड होता है. Now this electrode may be solid, may be liquid, or may be gas, which is always associated with its ion solution. मतलब इसका हाइड्रोजन है तो H प्लस, कॉपर है तो CO2 प्लस, Mg है तो Mg2 प्लस, ऐसे. ओके, सो इलेक्ट्रोड एंड इट्स आयन सॉल्यूशन. अभी मैंने क्या बोला? सॉलिड, लिक्विड और गैस. बट ये जो आयन सॉल्यूशन होता है, इट इज ऑलवेज फाउंड इन एक्वियस फॉर्म. एक्वियस मतलब पूरे चैप्टर में हम लोग एक्वियस सॉल्यूशन ही कंसीडर करते हैं. सो दीज आर टू डिफरेंट फेजेस. सो व्हेन देयर आर टू डिफरेंट फेजेस, we are putting single vertical line between these two. ये समझ में आया? Everybody understood this part? Okay. अभी second point है. Now, cell is made up of cathode and anode. तो एनोड का एक पार्ट होता है, मतलब ये जो रिप्रेजेंटेशन है, this representation is for one half cell. ये क्या हो गया? हाफ सेल. तो ऐसे दो हाफ सेल होते हैं. एक हाफ सेल में कैथोड का रिएक्शन मतलब ऑक्सीडेशन होता है, और दूसरे हाफ सेल में एनोड का क्या होता है? ऑक्सीडेशन का रिएक्शन होता है. रिडक्शन होता है और ऑक्सीडेशन होता है. तो जो दो हाफ सेल, एक पे ऑक्सीडेशन और एक पे रिडक्शन हो रहा है, वो दोनों को हम लोग कनेक्ट करते हैं. नाउ दिस कनेक्शन इज वाया through these solutions. मतलब यहाँ पे दो solutions हैं. One is ion solution 1 और दूसरा होता है ion solution 2. कुछ समझ में नहीं आ रहा है? होल्ड ऑन, मतलब होल्ड करना. जो भी तुम लोग के दिमाग में डाउट्स रहेंगे उसको रख देना अपने दिमाग में. ओके, whenever we solve, जब हम लोग आगे जाके एग्जांपल्स करेंगे, that time you will understand this okay very well. So ion solution 1, ion solution 2, ये दोनों को कनेक्ट करने के लिए यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, कनेक्शन of half cells by salt bridge. Wait for some time. Salt bridge. Now these two half cells salt bridge से connect करते हैं. To indicate salt bridge, we are putting single vertical, double vertical lines. ऐसे. ऐसे होगा, डबल वर्टिकल. ठीक है. थर्ड पॉइंट ये है,
एनोड जो होता है ना वो हमेशा लेफ्ट हैंड साइड में लिखना है. ओके, एनोड इज द इलेक्ट्रोड वेयर द ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस. ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस. और रिप्रेजेंटेशन में हमेशा उसको कहां पे रखना है, लेफ्ट हैंड साइड में. और कैथोड जो है ना, कैथोड उसका मतलब उसको आइडेंटिफाई कैसे करने का, जहां पे रिडक्शन होता है दैट इलेक्ट्रोड इज कॉल्ड एज कैथोड एंड उसको रिप्रेजेंटेशन में राइट हैंड साइड में रखना है. ओके, सो इसको मैं शॉर्टकट बता रहा हूं इसका. दैट इज A A L O N E. ठीक है, सो इसमें A स्टैंड फॉर एनोड. ठीक है, नेक्स्ट वन इज L. L stand for left. Okay, then O. O stand for oxidation. Oxidation. And Ne stand for negative electrode. तो इसका उल्टा क्या होगा, कैथोड के लिए होगा. तो वो याद रखने की जरूरत नहीं. कैथोड राइट साइड में रिडक्शन होता है एंड पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड. प्लीज कीप दिस थिंग इन माइंड. इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स में एनोड के ऊपर चार्ज नेगेटिव होता है. हम लोग आगे जाके अभी थोड़ी देर में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि वो कैसे नेगेटिव होता है. ठीक है, तो पहले ये चीजें लिख लो, राइट डाउन दीज थिंग्स.
If you have done this, write down this part also. Yes, done everybody? ये भी लिख लो. Chalo, let us move ahead now for the next part of this chapter. So now I'm going to tell you few definitions. Okay. The first one is electrode potential or single electrode potential. Single electrode potential. Here I'm not going to follow the textbook flow. Okay. I'm going to follow my own flow, but we are going to cover all the topics from the chapter. Remember this thing, from this topic, from this part of this chapter. Okay. Electrochemical cell. So single electrode potential. What do you mean by single electrode potential? Potential develop when an electrode is dipped in its ion solution. Is called as single electrode potential.
ओके, सो ये कैसे पोटेंशियल डेवलप होता है ये अभी हम लोग देखेंगे। हाँ, उसके लिए हम लोग अभी ये सब कुछ कर रहे हैं। नेक्स्ट वन इज ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय ऑक्सीडेशन पोटेंशियल? Potential develop due to oxidation of an electrode when it is dipped in its ion solution. Same way we can write reduction potential. ओके, अच्छा, इसको रिप्रेजेंट हम लोग ऐसा करते हैं ई ऑक्स, और अगर एलिमेंट लिखा हुआ है तो एम एन प्लस, ओके, और ई एक्स माइनस एक्स टू, ऐसे। दिस इज द रिप्रेजेंटेशन। सो यहाँ पे देखना ये क्या हो गया, व्हाट इज हैपनिंग ओवर हियर, सी एम ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है और ये n प्लस है ना, यहाँ पे n प्लस है, इसमें। सो इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन माइनस टू 0, इंक्रीज इन, यहाँ पे वर्टिकल लाइन है, दिस इज वर्टिकल लाइन। रिडक्शन पोटेंशियल क्या होगा, पोटेंशियल डेवलप ड्यू टू reduction of an electrode when it is dipped in its ion solution, ठीक है। इसको रिप्रेजेंट ऐसे करते हैं, ई रेड और ई एम एन वर्टिकल एम, सफिक्स में देखनी, ये सफिक्स में लिखना है, और ई एक्स टू एक्स माइनस, ठीक है। दिस इज द रिप्रेजेंटेशन। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। Standard oxidation potential. So when there is a word standard, which means it is under standard conditions, okay, तो वो क्या है वो अभी हम लोग देखते हैं। potential develop due to oxidation of electrode which is dipped in 1 molar ion solution at 298 Kelvin and 1 atmospheric pressure. समझ में आया स्टैंडर्ड कंडीशंस क्या है? 1 मोलार आयन सोल्यूशन होना चाहिए, बाकी तो कंडीशन मुझे पता है, स्टैंडर्ड कंडीशंस हम लोगों ने पढ़े हैं, 298 केल्विन एंड 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये थर्मोडायनेमिक्स में हम लोगों ने किया था, है ना। इसको ना रिप्रेजेंट ऐसे करते हैं, ई सेम ऐसे लिखते हैं, ई नॉट,
उधर भी वैसे था, याद है, डेल्टा H नॉट, डेल्टा S नॉट, डेल्टा G नॉट, सेम इज हियर. E नॉट ऑक्सीडेशन और E नॉट MMN प्लस और E नॉट X माइनस X2. तो सफिक्स में देखने का क्या है वो, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल. सो अभी तुम लोग रिडक्शन पोटेंशियल लिख सकते हैं ना स्टैंडर्ड. अच्छा, इसको बोलते हैं SOP, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल. दिस वाज द स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल. सो यू राइट डाउन फॉर स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल. नोटेशंस वगैरह सब कुछ लिखना. पहले ये राइट डाउन दिस पार्ट. ये लिखने के बाद स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लिखो, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल लिखो. राइट डाउन. Any doubt here? According to the IUPAC, standard reduction potential is called as standard electrode potential. Reduction potentials are nothing but your electrode potential. In Sir. exam, they will provide you only electrode potential value, that is nothing but standard reduction potential or reduction potential value. Here, okay. Now let us move ahead for the next concept, that is development of single electrode potential. Development of single electrode potential. बहुत सारी चीजें अभी अपने को देखनी है. Okay, इस चैप्टर में there are so many things which we have to discuss. Okay, बड़ा है चैप्टर. This part is somewhat difficult also to understand, and at the same time it's a bigger one also. Many concepts are there. This was explained by Nernst. Okay, abhi textbook mein they are not mentioned it, but this was given by Nernst. Nernst terrible too. Nernst, name of the scientist. He has considered two tendencies of metal ions. Okay, so अभी हम लोग metal ions के बारे में ही बात कर रहे हैं. Tendency of metal ions, or simply say ions. Okay, one, flow from electrode to solution. Okay, दूसरा टेंडेंसी है फ्लो फ्रॉम सॉल्यूशन टू इलेक्ट्रोड. समझ में आया? One tendency of metal ion is what? Flow from electrode to solution. और दूसरा टेंडेंसी क्या है? Flow from solution to electrode. Is that okay? So this I am explaining with the help of diagram. राइट, और ये है उसका सॉल्यूशन. सेकेंड वन, ठीक है ऐसे. सो मैंने क्या बताया, देयर आर टू टेंडेंसी. अच्छा, दिस टेंडेंसी आई कॉल इट एज अ ए एंड दिस वन आई कॉल इट एज अ बी. ऐसे ही रैंडमली, मतलब शॉर्टकट. तो इस केस में मैंने क्या बताया, दोनों टेंडेंसीज प्रेजेंट होते हैं. बोथ द टेंडेंसीज आर प्रेजेंट फॉर अ मेटल आयन, फॉर अ मेटल इलेक्ट्रोड. So let us consider here A is greater than B. A is greater than B. What do you mean by that? Metal ions have tendency to flow from, more tendency to flow from electrode to solution than
solution to electrode. मतलब क्या कि यहां से मेटल आयन किधर जाएगा, सोल्यूशन में जाएगा ऐसे। और यहां पे क्या है, here I have B is greater than A. So here the flow of ions is from solution to electrode. Understood? ठीक है। तो देखो अब यहाँ अगर समझो M, ये वाला पार्ट में बता रहा है, M solid है which enters into the solution, तो आयंस कैसे बनाएगा, Mn plus aqueous plus n इलेक्ट्रॉन, मतलब दिस इज सॉलिड ना इलेक्ट्रोड, दिस वन इज सॉलिड। ये सोल्यूशन में अगर जाएगा, ऑलवेज रिमेंबर दैट सोल्यूशन में वो डिसॉल्व तभी होगा जब उसका आयंस बनेगा। ओके, इट गेट डिसॉल्व ओनली व्हेन इट इज इन द फॉर्म ऑफ आयन। सो आयंस आर एंटरिंग इनटू द solution, so solution carries now a positive charge, am I right? Solution carries now positive charge. Sandesh, everybody wake up. Yes, Leaving sir. behind electrons, तो electrons किधर रहेंगे, electrons कभी भी solution में नहीं जाएंगे, वो कंडक्टर पे ही रहेंगे ऐसे, करेक्ट। फिजिक्स में ना एक कंसेप्ट है कैपेसिटर, याद है कैपेसिटर, पढ़ा होगा ना तुम लोगों ने। Yes. इसमें Yes, कैसे, sir. हाँ, तो इसके अगर एक प्लेट को पॉजिटिव चार्ज दिया तो नेगेटिव चार्ज दूसरे प्लेट पे डेवलप होता है, and because of the separation of charges there is a development of potential, capacitor potential बोलते हैं इसको हम लोग। Similarly पॉजिटिव चार्ज सोल्यूशन में है और नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रोड पे है, तो दो अलग अलग फेजेस है ये, and because of these two different phases potential is developed, and that potential is called as single electrode potential. इसको क्या बोलते हैं हम लोग, single electrode potential. Now what is this process, this process is called as de-electronation. De-electronation मतलब electrons we are removing, de-electronation मतलब loss of electron, hence it is called as oxidation. Hence the potential developed over this electrode is called as oxidation potential. अगर ये solution 1 molar है, if this solution is 1 molar, then this potential is called as standard oxidation potential, right? इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ E M Mn plus, am I right? Or and E naught M Mn plus. ये क्या है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, और ये क्या है, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। अब जरा ध्यान से सुनना, मैंने क्या बताया था शुरुआत से, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जब से चालू हुआ है तब से मैंने बताया था, द इलेक्ट्रोड वेयर द ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस इज कॉल्ड एज एनोड। तो इसका मतलब ये इलेक्ट्रोड, सॉरी ये जो इलेक्ट्रोड है, दिस इलेक्ट्रोड इज व्हाट, एनोड। सो देखो एनोड पे चार्ज कौन सा है, नेगेटिव है, अंडरस्टैंड। सो इन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल व्हाई एनोड कैरीज नेगेटिव चार्ज, सी एक वन बाय वन हम लोग चीजें क्लियर करते जा रहे हैं। ओके, मैंने पहले तुम लोग को समझाया कि एनोड के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, it is because of spontaneous redox reaction, it is because of why spontaneous redox reaction। तो हम लोगों ने एक पार्ट देखा ऑक्सीडेशन रिएक्शन, तो ऑक्सीडेशन होने के बाद पोटेंशियल कैसे डेवलप होता है ये मैंने समझा दिया तुम लोग को। और ऑक्सीडेशन जो जिस इलेक्ट्रोड पे होता है दैट इलेक्ट्रोड इज कॉल्ड एज व्हाट, एनोड। और अगर तुम लोग डायग्राम देख रहे हो तो कोई भी डायग्राम, कोई भी इलेक्ट्रोड, नॉन मेटल इलेक्ट्रोड भी लोगे ना तो भी सेम थिंग, व्हाट इज हैपनिंग, oxidation will take place, therefore that electrode is negatively charged. Understood everybody? Anybody having any doubt?
ठीक है. No, sir. Now let us we have now another condition. The condition is B is greater than A. इसका मतलब क्या हो गया? Ions from solution start depositing on the electrode. ठीक है. तो इसका मतलब यहां से आयंस इसके ऊपर डिपॉजिट हो रहे हैं. यहां से समझो ये कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन है, तो कॉपर सल्फेट के कॉपर आयंस इसके ऊपर डिपॉजिट होंगे, लीविंग बिहाइंड सल्फेट आयन इन द सोल्यूशन. तो सल्फेट सोल्यूशन हो गया नेगेटिवली चार्ज और इलेक्ट्रोड क्या हो गया? पॉजिटिवली चार्ज. है कि नहीं? समझ में आ रहा है? तो जब ये मेटल आयंस इसके ऊपर डिपॉजिट होंगे Mn प्लस, और अगर मैं ये दोनों को यहां से कनेक्ट करूं एक्सटर्नली, तो देखो यहां से इलेक्ट्रॉन्स इधर आ गए, यहां से इलेक्ट्रॉन एनोड पे, इलेक्ट्रॉन किधर आ गए? कैथोड पे आ गए, इस इलेक्ट्रोड की तरफ आ गए, एंड इट एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन. तो जब मैं इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करूंगा, देन व्हाट आई हैव? M solid. क्या मिलेगा? M solid. This process is called as electronation. क्या बोलते हैं हम लोग? Electronation. That is nothing but reduction, and therefore this electrode is called as what? Cathode. इस इलेक्ट्रोड को हम लोग क्या बोलते हैं? कैथोड बोलते हैं. देखो कैथोड के ऊपर चार्ज कौन सा है? पॉजिटिव चार्ज है ना? दिस इज रिप्रेजेंटेड एज E Mn plus M, और एंड E नॉट Mn plus M. ये है रिडक्शन पोटेंशियल और ये है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल. इज दैट क्लियर ऑल ऑफ यू? समझ में आया सबको? एनीबॉडी हैविंग एनी डाउट? हाँ, कैसे पोटेंशियल डेवलप हुआ, कैसे वो एनोड निगेटिवली चार्ज है, कैसे कैथोड पॉजिटिवली चार्ज है, समझा सबको? किसी को कुछ डाउट है? प्लीज ये वाला पार्ट लिख लो. Yes, sir. राइट डाउन दिस. So let us consider one example, Daniel cell. हम लोग क्या ले रहे हैं? Daniel cell. I will explain this concept using Daniel cell. ये तुम लोग ना यूज करते हो फिजिक्स प्रैक्टिकल में, पोटेंशियोमेट्रिक एक्सपेरिमेंट. ओके, अभी पता नहीं अभी तुम लोग करोगे कि आई डोंट नो. सो Daniel cell consists of what?
So this is the Daniell cell, simplest representation of Daniell cell. Okay, this is ZnSO4 solution, and this is zinc electrode. Then this is copper sulfate solution, and this is copper electrode. Okay, and this one is called as salt bridge. I'll explain you what is that. Wait for some time. Salt bridge. ठीक है, अभी देखते हैं इसमें ये जो है ना zinc, it acts as an anode. Anode, when I say anode, which means what? Zinc has tendency to pass into the solution. So देखो ध्यान से देखना, ये जो इलेक्ट्रोड है ये किधर जाएगा? सोल्यूशन में गया, तो क्या बनाएगा? Zn2 प्लस आयंस. तो Zn2 प्लस कैसे बन सकते हैं? बिकॉज ऑफ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन. तो इसका मतलब एट एनोड, एनोड कौन हो गया अपना? जिंक हो गया. Zn solid gives you what? Zn2 plus aqueous plus 2 electrons. ये कौन सा प्रोसेस हो गया? ऑक्सीडेशन हो गया. Now these electrons move through the external circuit और यहाँ पे आ गए यहाँ पे. Now here copper ions have a tendency to deposit on the electrode. So at cathode, copper ion Cu2 plus accepts electron, giving you what? Copper solid. ये है अपना reduction process. Understood? So अगर ये दो reactions को मैं add करूं, अगर ये दो reactions को मैंने add किया तो क्या होगा? ये 2 इलेक्ट्रॉन्स कैंसिल हो जाएंगे. इक्वल होने चाहिए इलेक्ट्रॉन. अगर इक्वल नहीं है तो उसको बैलेंस करके लेना बाय मल्टीप्लाइंग विद द प्रॉपर नंबर. सो नाउ आफ्टर एडिशन आई हैव Zn solid plus Cu2 plus aqueous. That gives you Zn2 plus aqueous plus Cu solid. This is called as net cell reaction. क्या ये? Net cell reaction, मतलब net redox reaction. So again I am repeating, electrons are moving through the external circuit. तो सर यहाँ पे कैसे जाएगा? तो ये जो सॉल्ट ब्रिज है ना, सॉल्ट ब्रिज, ये सॉल्ट ब्रिज आयंस को लेके जाने का, मतलब जो चार्ज है उसको लेके जाने का काम करता है. ओके, सो सर्किट इज कंप्लीटेड दिस वे. अंडरस्टूड एवरीबॉडी? हाँ, क्लियर? समझा अभी ये जो ऊपर वाला कंसेप्ट है कैसे पोटेंशियल डेवलप हो रहा है? तो इसका मतलब यहाँ पे जो पोटेंशियल डेवलप होगा, यहाँ पे एनोड पे पोटेंशियल डेवलप एट एनोड, वो क्या होता है? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल. ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है ना. और कैथोड पे जो पोटेंशियल डेवलप होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? रिडक्शन पोटेंशियल. ऊपर डेफिनेशन लिखा है ना, पोटेंशियल डेवलप ड्यू टू द ऑक्सीडेशन ऑफ इलेक्ट्रोड इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन पोटेंशियल. पोटेंशियल डेवलप ड्यू टू रिडक्शन ऑफ इलेक्ट्रोड इज कॉल्ड द रिडक्शन पोटेंशियल. तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एट एनोड, इसमें मैं क्या लिखूंगा? एट एनोड is equal to E Zn2 plus, and at cathode what should I write? E Cu2 plus Cu. ठीक है ना. सो अगर ये दो को मैंने ऐड किया पोटेंशियल्स को, तो मुझे क्या मिलेगा? ये पूरा एक सेल बना देगा. ये वाला जो पोर्शन है हाफ सेल, ये दूसरा हाफ सेल. ये जब दो सेल को मैं कनेक्ट करूंगा तो मुझे एक सेल मिलेगा. सो आई एम राइटिंग हियर EMF ऑफ सेल इज इक्वल टू ऑक्सीडेशन पोटेंशियल. ऑक्सीडेशन पोटेंशियल
of anode plus reduction potential of cathode. Everybody got this point? Yes, समझ रहा है सबको? हाँ, पहले ये वाला पार्ट लिख लो, धीरे धीरे जाते हैं हम लोग, चिंता मत करना. फर्स्ट ऑफ ऑल यू राइट डाउन दिस पार्ट. इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज आस्क. सर हाँ बोल. सर ते डॅनियल सेलचा पार्ट जरा परत एकदा एक्सप्लेन करता का? सांगतो. Daniell cell consists of zinc electrode dipped in a zinc sulfate solution or zinc ion solution, and copper electrode is dipped in a copper sulfate solution. The electrodes are connected externally through wires and the solutions are connected through salt bridge. At anode, मतलब ये anode क्यों है? Why this is anode? So just now I explained you. Every electrode has two tendencies. One, the flow of ions, मतलब यहाँ पे flow of metal ions from electrode to solution, और दूसरा क्या है? Flow of metal ions from solution to electrode. In case of Daniell cell, जो zinc electrode है, उसमें it has a tendency, or metal ions has a tendency, Zn2 plus ion has a tendency to flow from electrode to solution. So here zinc electrode enters into the solution because of oxidation. इसलिए ये क्या हो गया? Anode हो गया. And we know that anode carries what? Negative charge. तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे चार्ज आएगा नेगेटिव. समझ में आ रहा है? और कैथोड पे क्या होगा? कैथोड पे कॉपर आयंस इस पे डिपॉजिट होगा, तो इसलिए क्या हो गया? पॉजिटिव. समझ रहे हो? सी व्हेन वी आर यूजिंग बैटरी सेल, ये क्या है? सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है ना. तो जब मैं इसको कनेक्ट करूंगा दूसरे किसी के साथ, तो ये सेल उसको पोटेंशियल देगा. तो इसके बीच में ये गैल्वेनोमीटर मैंने लगाया, तो गैल्वेनोमीटर में मुझे डिफ्लेक्शन मिलेगा, या वोल्टमीटर में मुझे यहाँ पे पोटेंशियल मिलेगा, या एमीटर में यहाँ पे करंट मिल रहा है. क्यों मिल रहा है? बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स आर फ्लोइंग. Potential is developing across these electrodes. Okay, समझ में आ रहा है ना? ये देखो ना, ये नेगेटिव चार्ज है, so low potential. यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, so high potential. So potential developed across this electrode is called as the EMF of the cell, and that is nothing but oxidation potential at cathode plus reduction potential at anode plus reduction potential at cathode. ठीक है? समझ ला नम्रता? Yes sir. Good. Write down please. Remember this thing. ये जो tendency है to pass into the solution or deposit on the electrode, that depends upon the opposite electrode. Now why zinc is releasing ions? Because copper is depositing ions. Remember this time. If suppose if I keep another electrode where that electrode is depositing ion, then in that case zinc is releasing ion. Are you getting my point? So it is not fixed. मतलब ये hard and fast rule नहीं है कि zinc हमेशा ion से अंदर छोड़े, ion मतलब वो हमेशा anode रहेगा. It is not like that. It depends upon the other electrode. वो electrode कैसे behave करता है, उस हिसाब से फर्स्ट इलेक्ट्रोड मतलब एनोड और कैथोड डिसाइड होता है. ओके, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो एक्चुअली एनोड बोलने के लिए सिंगल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, बट मैंने इसको ऐसे कट किया, और अगर मैंने पोटेंशियल मेजर किया, तो वो तुम लोगों को पोटेंशियल कभी मिलेगा ही नहीं. इट इज नॉट अ ट्रू पोटेंशियल एट ऑल. सो टू मेजर दैट पोटेंशियल वी हैव टू कनेक्ट दीज टू हाफ सेल्स. रिमेंबर दिस थिंग ना. ये बोलने के लिए हाफ सेल पोटेंशियल है या सिंगल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, बट एक्चुअल केस में, आइडियलिटी में, मतलब वो पॉसिबल है. थियोरेटिकली, एक्सपेरिमेंटली यू कैन नॉट डिटरमाइन सिंगल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जस्ट बाय पुटिंग इलेक्ट्रोड इन एन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन. मुझे 2 इलेक्ट्रोड वहां पे चाहिए,
जब दो इलेक्ट्रोड रहेंगे उसको कनेक्ट करना है, तब जाके उसमें से एक एनोड रहेगा, उसमें से एक कैथोड रहेगा, तो सेल ईएमएफ आ जाएगा, तब जाके मुझे पोटेंशियल मिलेगा. प्लीज रिमेंबर दिस थिंग. सो हियर कॉपर नाउ एक्ट एज कैथोड, बट जरूरी नहीं दूसरे किसी इलेक्ट्रोड के साथ वो कैथोड रहेगा, वो एनोड भी हो सकता है. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? समझ में आ रहा है? जो कंडीशंस मैंने यहाँ पे यूज किए हैं, जो कंडीशंस यहाँ पे मैंने समझो 1 मोलर कॉन्सेंट्रेशन मैंने यहाँ पे यूज किया है, और इससे मैंने क्या डिटरमाइन किया, ये रिडक्शन पोटेंशियल डिटरमाइन किया. सेम कंडीशन में दूसरे इलेक्ट्रोड के लिए दूसरे कॉम्बिनेशन में यूज किया. इफ आई यूज इन अनदर कॉम्बिनेशन, then in that case copper act as anode. Now the potential developed there is same, value same रहेगा, but दोनों का साइन क्या रहेगा, अलग रहेगा. Are you getting my point? थोड़ा कंफ्यूजिंग है, but थोड़ा समझने की कोशिश करो. कॉपर अगर वो एनोड है तो जो पोटेंशियल डेवलप होगा, ऑब्वियसली कंडीशन सेम होने चाहिए, concentration of solution, temperature, pressure. Under these similar conditions, कॉपर अगर मतलब मैं एसटीपी लेता ना स्टैंडर्ड कंडीशंस पे, कॉपर का पोटेंशियल मतलब कॉपर एक्ट एज एनोड, तो जो पोटेंशियल रहेगा the same value you will get if it act as a cathode. Okay, same thing for the zinc also. जिंक अगर इधर एनोड है तो उससे जो पोटेंशियल मिलेगा, और अगर सेम कंडीशंस मैंने मेंटेन रखे, एंड इफ इट जिंक एक्ट एज अ कैथोड, then magnitude of the potentials remain same. Okay, सिर्फ साइन का फर्क रहेगा. That is use convention. तुम लोग कन्वेंशन बोलते हैं. Are you getting my point? समझ में आ रहा है ये कंसेप्ट? If anybody having any doubt, ask. मतलब जिंक और कॉपर अगर मैंने कॉम्बिनेशन यूज किया तो हमेशा जिंक क्या रहेगा, एनोड रहेगा, कॉपर क्या रहेगा, कैथोड रहेगा. ठीक है? चलो, now let us move ahead for the next part. देखो अभी, so just now I said for an electrode, for an electrode, for an electrode, oxidation potential is equal to minus of reduction potential under similar conditions. Okay, so I'll write here at STP, standard conditions of temperature and pressure and 1 molar concentration, I'll write E naught oxidation at STP for an electrode, standard oxidation potential is equal to minus of standard reduction potential. Understood? Clear? तो यहाँ पे देखो मैंने फॉर्मूला क्या लिखा है, E cell is equal to oxidation potential of anode plus reduction potential of cathode. So I can write this, मतलब वो जो फॉर्मूला है ना, E cell is equal to एनोड के लिए भी मैं रिडक्शन पोटेंशियल लिखता हूँ, सो माइनस ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड प्लस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड. समझ में आया? So I can write here as E cell, because IUPAC ने क्या बताया, रिडक्शन पोटेंशियल इज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ना. So E cell is equal to electrode potential of cathode, electrode potential of cathode
minus electrode potential of anode, or in general I'll say our E cell is equal to E cathode. So when I just say E cathode, मतलब वो reduction potential है ना, याद रखना, minus E anode, reduction potential. Both are in a terms of reduction potential. At STP, I'll write E naught cell is equal to E naught cathode minus E naught anode. ठीक है? Please write down this part. Write down this one. A salt bridge is a U-shaped glass tube containing a saturated solution of strong electrolytes like KCl, NH4NO3, Na2SO4, even KNO3 भी हम लोग लेते हैं. Now we यही ions क्यों लेते हैं? Because they have a very high ionic mobility. Ionic mobility मतलब the velocity of ions in the solution. Generally इनका ionic mobility सबसे ज्यादा होता है, इसलिए वो लेते हैं. Okay, in agar-agar gel. Agar-agar is a kind of a organic gel. ठीक है? अभी एक इसका use क्या है? What is the use? पहला use ये है, it connects two half cell. Just now we discuss. ये देखो, ये दो half cells को connect कर रहा है, बराबर? ये पहला part हो गया. दूसरा, what is the second one? It maintains electrical neutrality in the cell. Okay. तीसरा, it minimizes liquid junction potential. It minimizes liquid junction potential, and it avoids mixing of electrolytes. देखो ये जेल है ना, जेल, तो इसका मतलब यहाँ से सोल्यूशन इधर नहीं जा सकता और यहाँ से सोल्यूशन यहाँ पे नहीं जा सकता. It is not a porous, it is a gel. Okay. So दो पॉइंट पहले तो सिंपल है, एक it connects to half cell and it avoids mixing of two electrolytes. Now तीसरा पॉइंट है it maintains electrical neutrality, and चौथा पॉइंट है it minimizes the liquid junction potential. What do you mean by this? अगर समझो मैंने सॉल्ट ब्रिज को हटा दिया, सॉल्ट ब्रिज नहीं है यहाँ पे, ओके, सॉल्ट ब्रिज को हटा दिया, सो अभी क्या होगा? ध्यान से देखो क्या होगा वो, प्लीज पे अटेंशन. यहां से आयंस किधर जा रहे हैं? सोल्यूशन में ना. तो सोल्यूशन के ऊपर चार्ज कौन सा डेवलप होगा? पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा, है ना. और यहां से पॉजिटिव आयंस इधर जा रहा है, नेगेटिव आयंस सोल्यूशन में. तो सोल्यूशन पे, तो नाउ हियर द सोल्यूशन इज पॉजिटिवली चार्ज एंड हियर दिस सोल्यूशन इज नेगेटिवली चार्ज. नाउ दिस इज अ काइंड ऑफ अ कैपेसिटर कंसेप्ट. तो यहाँ पे जो पोटेंशियल डेवलप होगा वो अक्रॉस द सोल्यूशन होगा. सो क्योंकि यहाँ पे पोटेंशियल डेवलप हुआ है, यहाँ पे जो पोटेंशियल है वो 0 वोल्ट हो जाएगा या कम हो जाएगा, 0 वोल्ट हो जाएगा या मिनिमम हो जाएगा. Now we want potential here, we do not want potential here. Are you getting my point? We want, see, output का मतलब क्या होता है? आउटपुट का मतलब होता है यहाँ पे मुझे पोटेंशियल मिलना चाहिए, ना कि, और ये मैं पोटेंशियल किसी भी हालत में मेजर नहीं कर सकता, यूज नहीं कर सकता. ओके, दिस पोटेंशियल इज कॉल्ड एज लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल. इसको क्या बोलते हैं हम लोग? लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल. व्हाट वी सेड? लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल. आई रिपीट, because of the tendency of this electrode to pass into the solution, this solution gets positive charge, and here the tendency of ions to deposit on the electrode, this solution gets negatively charged, and therefore the potential is developed at across the liquids, which is called as a liquid junction potential. Because of the liquid junction potential, the output potential dropped to 0. Okay, useful potential drop to 0.
क्लियर? नाउ इफ आई, अभी अगर समझो यहां पे मैंने क्या कनेक्ट किया, सॉल्ट ब्रिज कनेक्ट किया। तो सॉल्ट ब्रिज में मैंने क्या बताया था मैंने, सॉल्ट ब्रिज में आयंस है ना, कौन से आयंस है, K प्लस और Cl माइनस, तो या NO3 माइनस। तो इसमें जो सॉल्ट ब्रिज में जो आयंस है, जैसे ही यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा, यहाँ पे जो नेगेटिव आयंस रहेंगे ये इनको न्यूट्रलाइज कर देंगे, और यहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज है इसको ये न्यूट्रलाइज करेंगे पॉजिटिव चार्ज। देखो नेगेटिव चार्ज इसको न्यूट्रलाइज कर रहा है सॉल्ट ब्रिज का, और पॉजिटिव आयंस ये नेगेटिव आयंस को न्यूट्रलाइज कर रहा है। सो अल्टीमेटली देयर इज नो पोटेंशियल विल डेवलप अक्रॉस दिस इलेक्ट्रॉन, बराबर। और दूसरी बात, इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है, चार्ज का फ्लो हो रहा है ना, इसलिए यहाँ पे पोटेंशियल क्या होगा, डेवलप होगा। ठीक है, तो ये 4 पॉइंट हो गए। पहला पॉइंट क्या बोला मैंने, इट अवॉइड्स मिक्सिंग ऑफ टू इलेक्ट्रोलाइट, इट कनेक्ट्स टू हाफ सेल, इट मिनिमाइजेस लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल, एंड इट मेंटेन्स इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी इन द सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन रहना जरूरी है, because if potential is developed across the solution, the cell potential drops to 0. Understood? Okay. So आज का होमवर्क ये है, ये जितना भी मैंने आज तुम लोगों को पढ़ाया मैं तुम लोगों को भेजता हूँ, बट आज का होमवर्क ये है, राइट डाउन दिस सॉल्ट ब्रिज। ये सॉल्ट ब्रिज का डेफिनेशन लिखो, क्वेश्चन लिखो, व्हाट इज सॉल्ट ब्रिज एंड गिव द फंक्शंस ऑफ सॉल्ट ब्रिज। ये आज के लिए होमवर्क है फ्रॉम दिस टॉपिक। एनीबॉडी हैविंग एनी डाउट? यहाँ पे किसी को डाउट है तो पूछो, या एनीबॉडी हु हैज नॉट फॉलोड दिस, ओके, प्लीज सी दिस वीडियो अगेन एंड अगेन। जब तक तुम लोगों को दिमाग में फिट नहीं बैठता तब तक ये वीडियो देखो। ओके, ये पार्ट थोड़ा सा नया है, टोटली न्यू कंसेप्ट एंड somewhat difficult concept. So repeat this twice or thrice, okay, so that वो दिमाग में तुम लोग के फिट बैठ जाएगा। ओके, चलो, थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू। अगर किसी को डाउट है तो रुको, सर हाँ बोलना।